مونسون کے نئے سپیل نے سندھ میں تباہی مچا دی. موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال, کئی دیہات زیر آب آ گئے. دیواریں اور گھروں کی چھتیں گرنے سے 2 افراد زخمی. بجلی کے فیڈر ٹرپ ہونے سے متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی بھی معطل. لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے. حیدرآباد میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب, مرکزی شاہراہوں پر بھی پانی ہی پانی. بجلی کا نظام بھی متاثر. ضلعی انتظامیہ کے مطابق حیدرآباد کے علاقے لطیفہ آباد میں 101 ملی میٹر, سٹی میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. دریائے سندھ کا سیلابی پانی دادو کے کچے کے علاقے سے گزرنے کی وجہ سے 70 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی نظر ہو گئے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے. میرپور خاص میں بھی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش کے باعث کچے مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں. بارش کے بعد میونسپل کارپوریشن کا عملہ غائب. بارش کے پانی میں کئی علاقے ڈوب گئے. سانگھڑ سمیت مضافاتی علاقوں میں بارش کے باعث انسانی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. بجلی کے کئی فیڈر ٹرپ ہونے سے مختلف مضافاتی علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی. شاہپور چاکر کے ملا محلے میں گھر کی چھت اور دیواریں گرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے. ٹنڈو والا یار میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کبو سعید خان کے علاقے کچی پل میں بارش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. پورا علاقہ جھیل کا منظر پیش کرنے لگا. ضلع بدین کے دیہاتی علاقوں میں شدید طوفانی بارشوں کے باعث سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. سجاول میں بھی گھروں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں. پنجاب کے مختلف اضلاع مظفر گڑھ, منچن آباد, بوراوالا, کروڑ لال ایسن, کوٹلی ستیاں, گجرانوالا اور پھالیاں اور گردنوا میں بارش نے تباہی مچا دی. اکاڑا میں گھر کی چھت گر گئی. 2 بچوں اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے. مظفر گڑھ میں محلہ روشن آباد میں دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے. منچن آباد میں بسیدہ مکان کی چھت گرنے سے 2 بہن بھائی جان سے چلے گئے. بورے میں موٹر سے کرنٹ لگنے سے 4 سالہ بچی جاں بحق. کروڑ لال ایسن میں دکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. کوٹلی ستیاں میں بھتیاں کا مورا روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مکمل طور پر بند ہو گئی. گجرانوالا کے مختلف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. شیخوپورہ کی اہم شاہراہوں سمیت گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. پھالیاں اور اس کے گردنوا میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچستان کا واقعہ انتہائی دلخراش. شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. آرمی چیف کی سربراہی میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا بلوچستان کے واقعات میں پاک فوج FC کے جوان معصوم شہری شہید ہوئے. 2018 کے بعد اب پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. دشمنوں نے ناپاک سکیم بنائی. پاکستان اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گا اور ترقی کی راہ پر رواں دواں ہوں گے. ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے اور اس جو ایک انتہائی اہم اور پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کرنی ہے. یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا, یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹھی ہیں, انہوں نے مل کر یہ ایک ناپاک کا انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہید ہوئے, جن میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسر اور سپاہی شامل ہیں, جس میں FC کے ہمارے جوان شامل ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سولر بجلی کے حوالے سے سندھ حکومت نے ایک اور وعدہ پورا کر لیا. مڈل کلاس طبقے کو سولر سسٹم پر سبسڈی دیں گے. وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی پر دی گئی سبسڈی سمت سے بالا تر ہے. 2 مہینے کے چکر میں عوام کو 12 مہینے تکلیف میں رہنا پڑتا ہے. بجلی کا نظام تباہ ہے. بانی PTI کے فیصلوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا. جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے تو بانی PTI کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں. اب لانگ مارچ ہے اور نہ عدم اعتماد. بھر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہم پاکستان کے غریب ترین طبقہ سپورٹ کیا جائے سولر انرجی کے تھرو, تاکہ ان کو ہم کم قیمت پہ اور اگر وہ ہمارا کرائیٹیریا میں آئے تو مفت یہ نظام دلوا سکے تاکہ ان کو فائدہ ہو. مڈل کلاس طبقہ کو سبسڈی کی صورت میں ان کا انرجی ٹرانزیشن کے لیے وہ سہولت دیا جائے تاکہ وہ بھی ان کو ایک قسم کا مدد ملے اور
बिजली के बिल से कोई न कोई रिलीफ मिले। हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुंचाएं और कम कीमत पे वो बेचा जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि 40 अरब रुपए से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया है। पंजाब और इस्लामाबाद के साफिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब के रिलीफ के साथ 20 लाख बिजली के बिल अदायगी के लिए सार्फिन तक पहुंच चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि गुज़िश्ता दिन मुल्क भर तारीखी हड़ताल हुई है। कौम ने भरपूर साथ दिया है। हुक्मरानों को अपने अखराजात कम करना होंगे। ताजिरों ने सियासी मुफादात को पसे पुश डाल दिया है। रियासती माशी दहशतगर्दी अब बंद करना पड़ेगी। मुल्कीर हड़ताल हुई है और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक पत्थर नहीं फेंका गया। और इशू ये है कि लोगों को महंगी बिजली नहीं चाहिए, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इशू ये है कि ताजिरों के ऊपर ज़बरदस्ती का जो टैक्स का सिस्टम लाद दिया गया वो नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि ये IPPs का बोझ पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त अब मज़ीद नहीं कर सकती। इशू ये है कि हुक्मरान तबके को अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करनी होंगी, अपनी मराहत कम करनी होंगी, अपने फ्री पेट्रोल ख़त्म करने होंगे, अपनी गाड़ियाँ छोटी करनी होंगी। फिर हुकूमतों का दबाव होता है। मुझे अंदाज़ा है कि पिछले एक हफ्ते से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स की सतह पर ताजिरों की मीटिंग जगह जगह की जा रही थी। तो हुकूमत कल जो है वो टोटल नाकाम हुई है और ये नविश्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि अब ये जो मुआशी दहशतगर्दी है जो रियासती सतह पर हुकूमती सतह पर हो रही है, ये अब बंद करनी पड़ेगी हुकूमत को। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। एजेंडा जारी। कौमी असम्बली इजलास में 4 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में 4 बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में भंग के कंट्रोल और इंजबाती अथॉरिटी का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के क्याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गैर मुल्की सरकारी दस्तावेजात के कानूनी जवाज के खात्मे पर कन्वेंशन को मौसर बनाने का बिल 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। गुजरांवाला कौमी असम्बली के हल्का NA 79 पर वोटों की दोबारा गिनती। नून लीग के जुल्फिकार भंडर कामयाब। जुल्फिकार भंडर ने 95,604 वोट हासिल किए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक PTI के एहसान विर्क ने 92,581 वोट लिए। आम इंतखाबात में PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ा ने कहा है कि फैज हमीद का केस कहां चलेगा ये हमारा दार इख्तियार नहीं है। तमाम जरूरत पर पड़ी तो बयानी PTI का केस फौजी अदालतें भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ा ने कहा, हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की तौसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी या नहीं इसका फैसला मुझे नहीं करना। उन्होंने कहा, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल या सिविल अदालत में केस चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मेरा दायरा इख्तियार नहीं है। ताहम जरूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को कहा है, अगवाशुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर उनका प्लान B बन गया और वजीर आजम ओहदे से उतर गए तो वो भी अगवा हो सकते हैं। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा। हमारे जो लोग रूपोश हैं वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमाओं को हिदायत है वो अभी बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी PTI की वजह से हो रही है। मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। इसका मतलब आप PTI पर इल्जाम लगाकर झूठ बोल रहे हैं। बानी PTI का मजीद कहना था, हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूं 8 सितंबर को बाहर निकलें।
किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त न करें। अडयाला जेल में नए 3 अफसरान तैनात। महकमा जेल खाना जात ने अफसरान की तकर्रों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमाना नोटिफिकेशन के मुताबिक अडयाला जेल में नए 3 अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 17 के अली अमीर शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सप्तेन शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव जेल मुकर्रर कर दिया गया, जबकि ग्रेड 16 की खातून ऑफिसर जेबुल निसा को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के बॉक्स में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया है। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि आईटी शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इंटरनेट के बारे में वज़रा के बयानात भी मुमासलत नहीं। उन्होंने कहा कि एक वजीर कहता है फायर वॉल लगी है, दूसरा कहता नहीं लगी, एक कहता है ज़ेरे समंदर केबल कट गई, दूसरा कुछ कहता है। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि आईटी वजीर शिजा फातिमा कहती हैं वीपीएन से नेट सुस्त हुआ है। वजीर आला केपी सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने सूबाई असम्बली की फलस्तीन, कश्मीर और जर्मनी के मुतालिक करारदादों को वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी है। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कानून के मसवदे की मंजूरी भी दी गई है। इंसानी हकूक कमीशन ने अपने मौकिफ में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करारदाद में साबका एमएनए मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात के खात्मे का मुतालबा किया गया। करारदादों के जरिए इस बात का इयादा किया गया कि जम्मू और कश्मीर पर भारत के 76 साला गैर कानूनी कब्जे का खात्मा किया जाए। करारदाद में जर्मनी में अफगान शरपसंदों की जानिब से पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले की शदीद मजम्मत की गई। सूबाई काबीना ने जिला टांक और लकी मरवत के लिए 791 सीटीडी एहलकारों और 16 प्रोसिक्यूटर की असामियां मंजूर कर ली। सूबाई काबीना इजलास में पुलिस के लिए 10 मजीद बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी भी दी गई है। वजीर आला समंदर पार पाकिस्तानियों के कमीशन के सरबराह होंगे। वेलकम बैक। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कमसन बच्चों के एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया। मरीम नवाज ने स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट के अलावा तालबात से पौधे लगवाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। वजीर आला मरीम नवाज ने क्लास रूम और फिजिक्स लैब में जाकर तालबात से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। मरीम नवाज ने तालबात से पसंदीदा मजमून के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे और मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ ने स्मार्ट क्लासरूम के डिजिटल बोर्ड पर बच्चियों के लिए आई लव यू ऑल का मैसेज लिखा और कामयाबी की दुआ भी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सूबाई वज़रा ने रोडा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़रा ने रोडा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। चेयरमैन रोडा सैयद असफर अली नासिर, सीईओ रोडा इमरान अमीन की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा को रोडा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर मलिक अहमद खान, सूबाई वज़रा ने सीईओ इमरान मैन, चेयरमैन रोडा सैयद असफर अली नासिर की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर सीईओ रोडा मंसूबा जंजुआ और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का मामला। ज़राए का कहना है आईएमएफ प्रोग्राम में मजीद ताखीर संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। मंजूरी का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल ना हुआ तो आईएमएफ मिनी बजट का मुतालबा कर सकता है। हुकूमत 9 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज रोल ओवर कराने में ताहाल नाकाम है। ज़राए के मुताबिक जुलाई में सिर्फ 426 मिलियन डॉलर का कर्ज ही हासिल किया जा सका। आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर का नया मुआहदा करने के लिए चीनी, सऊदी और इमाराती कैश डिपार्टमेंट्स को रोल ओवर करने की शर्त रखी है। गैर मुल्की तजारती बैंकों से मजीद कर्ज के हसूल की 3 शर्त भी आयद की गई हैं। हुकूमत सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, चीन से 4 अरब डॉलर और इमारात से 1 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराने के लिए कोशिशें कर रही है। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के लिए कर्ज पैकेज की मंजूरी देने के लिए 30 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। कुछ खबरें शामिल करते हैं। मौसम के हवाले से चिल्लास बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने मौसम को सर्द कर दिया। इस मौसम में बर्फबारी का होना बड़ी अजीब सी बात है। मौसमी तब्दीलियों ने गिलगित बल्तिस्तान पे काफी ज्यादा असरात मुरतब किए हुए हैं और मुख्तलिफ मौसमी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी से सियाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस मौसम में बर्फबारी होने से मकामी लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। माल मवेशी को भी बर्फबारी से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
पंजाब के मजीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने के मामले में पेश रफ्त। वजीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र भावलपुर में PRA ऑफिस की ऑपरेशनल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक दीगर 11 अजला में भी दफातर का क़याम अमल में लाया जाएगा। रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने के लिए भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहरिक है। तर्जुमान के मुताबिक PRA के रेवेन्यू हदफ में 50 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। नए अजला में PRA दफातर के क़याम से टैक्स दहंदगान को सहूलत फराहम हो सकेगी। दीगर अजला में दफातर कायम होने से रेवेन्यू में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलेगा। तर्जुमान का कहना है कि जल्द ही कसूर शेखुपुरा में भी PRA के दफातर खोल दिए जाएंगे। फाइंडिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव सोलराइजेशन FICS 2024 इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर। समाजी सनतकारी को फरोग देने के लिए निस्ट की फ्लैगशिप FICS की ग्रैंड फाइनल और तकरीब तकसीम इनामात यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस में मुनक्किद की गई। मुकाबले में 30 से ज्यादा नस्ट स्कूलों, कॉलेजों और कौमी बैनुल-अक़वामी इदारों से 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट जमा करवाए गए। जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। पहले और दूसरे रनर अप को बालातर तरतीब 3 लाख और 1.5 लाख रुपए के नकद इनामात से नवाजा गया। 5,000 अमरीकी डॉलर का ग्लोबल चैंपियन अवार्ड आज़रबाईजान स्टेट ऑयल एंड इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी TMA-BC को दिया गया। मेहमान खसूसी वजारत वफाकी तालीम और पेशेवराना तरबियत के सेक्रेटरी मोयुद्दीन अहमद दानी ने FICS 2024 के फाइनलिस्ट खास तौर पर फातहीन को उनके ज़हीन ख्यालात और हल के लिए मुबारकबाद दी। रेक्टर नस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद महमूद बुखारी ने खिताब में कहा, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का मकसद शानदार नौजवान जहनों को समाजी चैलेंजों का कारोबारी मौके में तब्दील करने का मौका फराहम करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।